मन में जो भी प्रेयर है प्लीज उसको फोर फ्रंट पे रखें, बट वो प्रेयर जो है वो स्पिरिचुअल होनी चाहिए, आपको भगवान के करीब लेके जाए। वैसी प्रेयर कृपया मत रखना जिससे मॉर्गेज रेट कम करने की प्रेयर ना हो। लाउडली सारे साथ में बोलेंगे, हाथ अपने ऊपर ही रखना, आंखें चाहे बंद करनी करो, बट विद योर हार्ट वेरी लाउडली। मुझे क्लियर आवाज नहीं आ रही, भगवान तक कैसे जाएगी आपकी? जोर से हरे कृष्णा हरे लास्ट टाइम हमारे होस्ट, उनकी फैमिली, उनके वेलबींग के लिए हरे कृष्णा लाउडली प्लीज हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा।
हाँ आप बोलिए प्रभु इधर ही आ जाओ सॉल्यूशन क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव है वायर निकालो ना यहाँ से हाँ निकालो he wants to speak Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. So after this electrifying kirtan, I'm sure most of you would probably want to know about Prabhu, right? Is that Yeah. right? Yes. I know that. No. Not most, all of you rather, you know. I know some of you already know about Prabhu, you know, because you're not attending the class for the first time, you know. But there are few others who are attending here for the first time. So आपके benefit के लिए, let me just introduce Prabhu. Huh? So Prabhuji's name is His Grace Arjun Sakha Prabhu. He came in touch with Vedic teachings or Vaishnava philosophy quite early on in his life in Delhi. He's from Delhi, Punjabi, you know, just like many of us here. You know, he came here in Melbourne as a student, and he worked here after finishing his studies. He worked here for some time in the travel industry, and then so all along he was coming in touch with Vaishnava philosophy, you know, scriptures and so forth. So after working for some time with the blessings, the main thing is with the blessings of his parents and family, he joined a temple, you know, ISKCON Melbourne as a brahmachari, you know, as you can see in saffron clothes. So he's been involved in many services, you know, and one such services is what he's performing here today, which is to explain the Vedic philosophy to a Grahastha families like us, you know, in a very, very easy to digest manner, you know. Prabhuji gives fantastic classes, he does amazing kirtans. He's very famous amongst the Grahasthas and youth. You know, we've got a fan club going on for Prabhuji's, to attend Prabhuji's classes, you know. So we are extremely fortunate to have Prabhu's association here today. I'd like to mention one more thing. It is actually a responsibility or a duty of a Grahastha to hear from saintly personalities. And today, we are extremely fortunate to have Prabhu's association. So I would really request you all to kindly open your hearts, be away from distractions. So please put your phones on silent, you know, just allow your oral reception, you know, your totally, you know, listen to what Prabhu has to say and ask questions towards the end. So with that, let us welcome Prabhuji with warm heart and loud volume. Loud voice, 3 times. Hari Bol, 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 Hare Krishna, Hare Krishna. Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. It's a very special occasion. Anyone knows what is special about today's occasion? आप मत बताना. What is so special about today's occasion? हाँ? भागवत इंस्टॉलेशन हो रही, भागवत स्थापित हो रही है. ओके, व्हाट एल्स? कार्तिक वन चल रहा है, उसके लिए आप आए हो. व्हाट एल्स? करवा चौथ. अब ब्रह्मचारी करवा चौथ तो बोला जाए. और क्या है? दामोदर मंथ है. और क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट टुडे?
संडे संडे आज गौ पूजा भी है कृष्ण। गौ पूजा भी है। अपने से रिलेटेड सोचो कुछ। हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए। क्या उनकी करना? एनिवर्सरी है क्या? उनकी एनिवर्सरी आज। आपकी एनिवर्सरी मुझे नहीं पता। हम यहाँ पे इकट्ठा होने क्या करने? हार्डली हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम सोशल गैदरिंग्स को ही कारण बना दें अपनी प्यूरिफिकेशन का। उल्टा होता है, सोशल गैदरिंग्स हमारे को दिमाग खराब करने का कारण बनती है। आप घर जब वापस जाते हो सोशल गैदरिंग से, तो आप प्रेशर लेके जाते हो, उसके पास तो ये है, मेरे पास ये है, वहां पे उसने ऐसे बोला, उसके कपड़े देखे थे तुमने, उसका हेयर स्टाइल देखा था, उसके तुमने ये देखा, तुमने उसका घर देखा, मेरे को भी घर में वो चाहिए, तो यू गो बैक विद प्रेशर। दैट्स व्हाट सोशल गैदरिंग डज टू पीपल। देयर इज अ स्टडी अराउंड दैट। देयर इज अ होल स्टडी ऑन इट। इसको टर्म यूज किया सोशल कंफॉर्मिटी। किसी ने सुनी है टर्म पहले? सोशल कंफॉर्मिटी। बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसमें लोगों को एक क्लिनिक में बिठाया है। वहां पे सारे के सारे जितने भी लोग क्लिनिक में बैठे हैं, वो उसमें से 90% आर्टिस्ट हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं, और एक पेशेंट आता है जो जेन्युइन पेशेंट है, उस डॉक्टर के लिए आता है। और अब इन्होंने क्या किया कि उस सोशल गैदरिंग में, उस बेसिकली उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे सोशल गैदरिंग ऐसा तो नहीं है वो, बट ग्रुप बैठा है वहां पे, और वहां पे उन्होंने जैसे ही बेल बजेगी अगले पेशेंट को बुलाने के लिए, उन्होंने क्या किया, जो आर्टिस्ट थे वो सारे खड़े हो जाते थे। अब ये नया पेशेंट जो आया है, ये देख रहा है कि इस गैदरिंग में हम 12-13 लोग बैठे हैं और मैं अकेला ही हूँ जो बैठा है, और जैसे ही पिंग बेल बजती है अगले पेशेंट को बुलाने, सब खड़े होते हैं और वापस बैठ जाते हैं। तो 3-4 बारी ऐसा हो गया, तो उसको लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो उसने क्या सोचा, अब सारे खड़े हो रहे हैं और मैं भी खड़ा नहीं हो रहा, तो बहुत ऑड है। तो वो खड़ा होने लगा। यू नो व्हाट दे डिड दिस, उन्होंने ग्रेजुअली एक एक करके सारे आर्टिस्ट को बाहर निकालने लग गए और नए पेशेंट आने लगे। और जब कोई नया व्यक्ति आता है, बेल बजती, सबको खड़ा देख रहा है, फिर से बैठ जाते हैं। इट्स रियल टाइम एक्सपेरिमेंट। मेरे पास अगर सोर्स होता मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। दे केम टू अ पोजीशन जहां पे 100% रियल पेशेंट्स थे, और हर बारी बेल बजने पे वो खड़े हो रहे हैं। हर बारी बेल बजने पे वो खड़े हो रहे हैं। एंड इट टर्न्स आउट, जब उनको पता चला कि ये प्रैंक था, प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो लोग, they were just embarrassed and nothing else they could do, and they could just laugh at themselves। अपने ऊपर हंस रहे थे, इससे ज्यादा क्या करते हैं। अब इमेजिन करो 100% पेशेंट्स जो रियल पेशेंट्स हैं, सब बेल बजने में टिंग, सब खड़े हो जाते थे, फिर वापस चेयर पे बैठ जाते थे। स्पेशली टीनेजर्स, दे रियली गो थ्रू दिस प्रेशर। बट टीनेजर क्यों बोले, हम सारे उसी के पेशेंट हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स बन गए हैं सोसाइटी में जिसको सक्सेस का टैग दे दिया गया है, और कोई भी व्यक्ति एक क्वेश्चन पूछता ही नहीं है कि हाउ डज सक्सेस टेस्ट और फील लाइक। कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि जो इस फ्लो में हमारे को सिखाया है और जो सबने कंफर्म किया है, वही मेरी रियलिटी बन गई है, और कोई इस साइकिल को ब्रेक नहीं करता। ये एक ऐसे वेव में हम सारे चल रहे हैं या बह रहे हैं जिसको ब्रेक करके बाहर जाने में बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। एक बार इंडिया में एक सिंगल मदर थी, अपनी बेटी की शादी करवा रही थी, और उसने सारी प्रिपरेशन करी है। उसकी बेटी बचपन से देख रही थी कैसे माँ ने उसको पाला, इतनी मेहनत करी उसको पालने में। उसकी शादी का दिन आया, वो मंडप पे बैठी है अपनी शादी के, और उसकी मदर देख रही है सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, एवरीथिंग शुड गो प्रॉपर्ली। अब उसकी मदर ने देखा कि अरे फेरों से जस्ट पहले लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन फेरों पे बैठे हैं, और वहां पे काली बिल्ली आ गई। तो शी गॉट वेरी वरीड कि ये अगर जंप कर गई तो सारे सामग्री हिला देगी, पूरा मैस हो जाएगा। तो उसने फटाफट अपने सर्वेंट को बोला कि एक बास्केट लेके आओ और इसके ऊपर डाल दो। तो बेटी सब ऑब्जर्व कर रही थी क्या हुआ, वो सिर्फ देख रही है वहां पे मंडप पे बैठ के कि उल्टी बास्केट डाल दी। अब इसकी बेटी की लाइफ अच्छी चल रही है, सब सक्सेसफुल हो। अब इसकी आगे बेटी थी,
कि जो बेटी थी अब इसकी आगे बेटी हुई, अब इसकी बारी आई अपनी बेटी की शादी करने की। तो ये सारी प्रिपरेशन कर रही है, अच्छा सा लड़का ढूंढा इन्होंने, पूरा मंडप वगैरह सेट किया। जस्ट फेरे होने लगे थे तो सडनली ये बोलती है, अरे मैं एक चीज भूल गई, काली बिल्ली ढूंढ के लाओ और एक बास्केट में लेके आना। बोले क्यों? बोले मेरी शादी सक्सेसफुल हुई थी, मेरी माँ ने किया था, तो तुम काली बिल्ली ढूंढ के लाओ और एक बास्केट लेके आओ। अब लाए, उन्होंने रखा वहां पे और शादी अच्छे से हो गई। अब 3 4 5 बारी ऐसा हो गया तो ये एक रिचुअल बन जाएगा जिसका किसी को कारण ही नहीं पता। हाँ? समझ लो हाउ रियली थिंग्स टर्न आउट। ये एक ऐसा पैटर्न बन जाएगा हमारी लाइफ का कि यही सच्चाई है। और अगर तुमने काली बिल्ली बास्केट के नीचे नहीं रखी शादी में तो अपशगुन होगा। और बाई चांस किसी की शादी टूट गई तो पूरे गांव या पूरी बस्ती या पूरे नगर या पूरे शहर में बात फैल जाएगी, क्योंकि तुमने काली बिल्ली और बास्केट के नीचे नहीं रखी थी, इसीलिए शादी टूटी। दिस इज अ डिजीज जिसके सब हम पेशेंट है। बट कृष्णा भगवत गीता में अर्जुन के इस एटीट्यूड को तोड़ रहे हैं और उसके लिए भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, साइंस ऑफ गॉड। अब ये है क्या जिसके कारण हम यहाँ पे, ऑफ कोर्स यू ऑल जो एटलीस्ट जो पहली बार आ रहे हैं, आप लोग बहुत कोई भी अलग अलग सब अपनी एक्सपेक्टेशन लेके आए होंगे कि हम जा रहे हैं, सोशल गैदरिंग है, कीर्तन होगा, सबने अपने अपने हिसाब से जो पहले अटेंड किया होगा उसके बेसिस पे आप लोग नेचुरली आए हो। बट द होल आइडिया ऑफ टुडेज गैदरिंग इज, इसलिए वो स्पेशल ओकेजन है कि लेट्स एक्सप्लोर विद इन। बाहर का तो हम बहुत कुछ करते रहते हैं, थोड़ा अंदर भी जाके देखते हैं। बाहर के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है, हम सारा का सारा समय अगर आप अपने 24 घंटे आपके सामने रख दो, एक्चुअली बड़ा शॉकिंग ट्रूथ है, बड़ा एम्बैरेसिंग भी है, बट आई स्टिल से। एक बोलने से पहले मुझे सिर्फ एक बात आप सब लोग कंफर्म कर दो, कैमरा भी चल रहा है, सुन लेगा कैमरा भी। आपको मीठा मीठा सुनना है या सच सुनना है? सच सुनना। सच सारे बोलो, एक एक करके बताओ। सच सुनना है या मीठा मीठा बोल के थोड़ा एंटरटेन करके जाओ। चलेगा ना? सच चलेगा? जो पहली बार ये चलेगा, सच चलेगा? हाँ चलेगा। मैं पर्पसफुली पूछ रहा हूँ बिकॉज एटलीस्ट आई नीड टू नो व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। मीठा सच? मीठा सच। हाँ, मैं चिंता नहीं करूँ, उतना भी सच नहीं बोलूंगा। उतना भी सच नहीं बोलूंगा कि आपको इंडाइजेशन हो जाए। बट इट्स गुड समटाइम्स, कभी तो जीवन में सुने, कभी कभी तो जीवन में सुने हम ऐसी ये बातें जो सोचने पर मजबूर करे कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं और बहुत तेजी से जा रहे हैं, वो डायरेक्शन सही भी है कि नहीं। और सच्ची में ऐसा हुआ। एक बार एक प्लेन में अनाउंसमेंट करी पायलट ने, माय डियर पैसेंजर्स, आप सारे लोग हिस्ट्री बना रहे हो, आप सब लोग हिस्ट्री बना रहे हो कि आप एक ऐसे प्लेन में बैठे हो जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड पे जा रहा है। आज तक इतना फास्ट कोई प्लेन फ्लाई नहीं किया। तो क्या हुआ, हम सब ने क्या किया, फटाफट से फोन निकाले, अपनी रील्स बनाने लगे। क्यों? क्योंकि हम हिस्ट्री के पार्ट हैं। वी आर रियली ब्रेकिंग थ्रू। हम ही उस प्लेन में थे जो पहली बार ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो सारे के सारे ओ कम ऑन यार, लेट्स मेक वीडियोस, रील बना रहे हैं पायलट के साथ, प्लेन के टैग के साथ। फिर पायलट अनाउंस करता है, बट मुझे ये नहीं पता मैं जा कर रहा हूँ। और सबके फोन वापस चले जाते हैं और डिप्रेस्ड कंडीशन, म्यूजिक चेंज हो जाता है। दिस इज आवर लाइफ। इतनी स्पीड से हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं और आई एम वेरी श्योर, आई कैन वेरी बोल्डली से कि हम सारे उस कैटेगरी में हैं जहां पे जो रिचेस, फैसिलिटीज, प्रॉपर्टीज, ब्ला ब्ला, यू जस्ट नेम इट, वो सब अचीव कर लिया होगा या उसके डायरेक्शन में चल रहे होंगे। बट कभी तो लाइफ में रुक के सोचें कि ये डायरेक्शन लेके कहाँ जा रही है। मैं आया तो था यहाँ पे हरी घास की खोज में, सुख ढूंढने, बट निकला कुछ हो रही। बट ऐसा सोशल कंफर्मिटी क्रिएट हो गया है कि यही सक्सेस का फॉर्मूला है, यही सुखी रहने का तरीका है, और डर लगता है इसको ब्रेक करके कुछ और सोचने में। और मैं यहाँ पे ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहा कि मत कमाओ पैसा,
कृष्णा ने भगवत गीता अर्जुन को बोली है, जो अपने आप में सबसे सक्सेसफुल प्रिंस, अपने स्किल का सबसे सक्सेसफुल आर्चर था, सबसे बेस्ट धनुर्धर था। भगवान ने अर्जुन को ये शिक्षा नहीं दी कि तू अपने को डाउनग्रेड कैसे कर, अपने स्किल को नीचे कैसे ला, अपने प्रोफेशन को नीचे कैसे ला। नहीं, पूरी की पूरी भगवत गीता की शिक्षा ही ये है कि तू अपने प्रोफेशन को जीवन का गोल नहीं मानना। लाइफ का पर्पस बड़ा घर बनाना नहीं है। आपका रिसोर्स अगर अलाउ करता है आपको मर्सिडीज में घूमने के लिए, प्लीज घूमो, बट जिसने लाइफ का गोल मर्सिडीज में घूमना बना लिया, उसने बहुत कुछ छोड़ दिया। और वो सबसे पहली चीज छोड़ेगा सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, पीसफुल लाइफ, रिलेशनशिप, मेंटल पीस। स्पिरिचुअलिटी की तो मैं बात ही नहीं करता। हेल्थ जाएगा, रिश्तों से भी टूटेगा। क्यों? क्योंकि उसने गोल बना लिया। नीड है, गोल और नीड में बहुत बड़ा अंतर है। लाइफ के पर्पस में और आपकी नीड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। So we don't want to be in that category, at least from Bhagavad Gita's perspective. And I'm assuming कि आप लोग की ये desire हो, नहीं है तो after this session I pray and I hope कि हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है आध्यात्म के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे त्याग ही सिखाते हैं, सब त्यागो त्यागो त्यागो। That's not true. भगवान ने गीता में अर्जुन को एक बारी भी नहीं बोला कि तू अपनी पोजीशन को, अपने किंगडम को, अपने राज्य को त्याग दे। भगवान ने अर्जुन को क्या विद्या दी है, क्या साइंस दिया, तो उसी राज्य को, उसी किंगडम, अपने उसी रिचेस को इस्तेमाल किस तरह कर कि वो तुझे ही मुक्त कर दे, वो तुझे ही फ्री कर दे। इसलिए ये विजन का चेंज है, ये फैसिलिटीज का शिफ्ट नहीं है, ये माइंडसेट का शिफ्ट है, जो पूरी भगवद गीता की डिस्कशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली समझना। तो हम अपनी पर्सनल लाइफ में हम सारे देखते हैं कि आप में से कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल में होंगे, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई अलग अलग जॉब्स कर रहे होंगे। बट एक क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ओपन है, जो मैं सामने से आपको पूछ रहा हूं। एक व्यक्ति को अपने शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, और आपके हिसाब से इस प्लैनेट पे अगर 8 बिलियन लोग हैं तो कितने लोग इस शरीर की जरूरत पूरी कर सकते हैं रफली? आप लोग बोलो। बॉडी की नीड्स क्या है? थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी। कईयों को थोड़ा ज्यादा भी चाहिए होता है। जिसको डाइट मेंटेन करनी हो थोड़ा खाएगा, बट यू राइट, खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, बेसिकली यू वांट सम प्रोटेक्शन, घर चाहिए एंड ऑल दैट। किसी को बड़ा चाहिए, किसी को छोटा चाहिए, दैट इज फाइन, बट चाहिए। किसी को कम्यूट करने के लिए गाड़ी चाहिए, शरीर की जरूरतें हैं बेसिकली। बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना है। आपके हिसाब से 8 बिलियन में कितने लोग ऐसे हैं जो ये जरूरत पूरी कर सकते हैं? सभी नहीं। कौन सी दुनिया में? अफ्रीका में जाओ, इंडिया के कुछ ऐसे हिस्सों में जाओ जहाँ पे बिलो 1000 कैलोरी के नीचे का दिन चल रहे लोगों का। अफ्रीका में ऐसे जगहें हैं जहाँ पे मिट्टी खानी पड़ रही है उनको, क्ले के वो डिस्क बना के खाते हैं वो लोग, कुकीज बना के क्ले की बच्चों को खिलाते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव फूड। हाफ ऑफ द प्लैनेट, 4 बिलियन नंबर ठीक है, जिसके पास अपने शरीर की जरूरतें पूरी करने की सारी फैसिलिटी होगी। ये नंबर ठीक है आपके हिसाब से? हाफ प्लैनेट की पॉपुलेशन। अब कितने लोग ऐसे हैं इस 4 बिलियन में जो अपने मन की जरूरत भी पूरी कर सकते हैं? एंटरटेनमेंट मिल जाए, कोई अप्रिशिएट करने को हो, कोई तो अफेक्शन दिखाने के लिए हो, माता पिता ये सारी काफी सारी जरूरत पूरी कर देते हैं। स्पाउस है, बच्चे हैं, माइंड को एंटरटेनमेंट चाहिए, आपने मूवी देख ली। मैं बहुत बहुत छोटा नंबर भी लूँ ना तो इस 4 बिलियन में 1 बिलियन ऐसा होगा जिसके पास अपने मन को एंटरटेन करने की सारी फैसिलिटी है। अब इस 1 बिलियन में कितने लोग क्लेम कर सकते हैं दैट दे हैव अटेन्ड रियल हैप्पीनेस? और ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, और हम सारे उसी कैटेगरी में हैं जहां पे हमारे पास अपने शरीर और मन की सारी जरूरत पूरी करने की सुविधा है, बट भाग रहे हैं। आनंद, हैप्पीनेस बाय डेफिनेशन मीन्स जिसको पाने के बाद भाग या दौड़ खत्म हो जाए। अब जिसकी दौड़ चल रही है उसका मतलब उसको मिला नहीं है, तभी तो वो भाग रहा है। हम मेनी टाइम्स वी वेरी हैप्पीली, वेरी कैजुअली वी से, राइट, हाउ आर यू,
I'm fine. ऑस्ट्रेलिया में से थोड़े ऑनेस्ट है, बट नॉट बैड. ऑस्ट्रेलिया में किसी को हाउ आर यू, नॉट बैड. स्टैंडर्ड तो बैड है, बट आज थोड़ा ठीक हूँ. 1 बिलियन का नंबर में मैं अगर लूं, कितने लोग एक्चुअली हैप्पी हैं, और हम सब उस कैटेगरी में आते हैं. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये हमारा. आप अपना दिन का 24 घंटा लीजिए. ये अगर आप बड़े ऑनेस्ट और सिंसियर हो गए अपने आप से, आप बड़ा एम्बैरेसिंग होगा. हम अगर एक दिन में 8 या 9 घंटे काम करते हैं, जॉब करते हैं, काम पे आना जाना में लाके 11 घंटे लग जाते हैं तकरीबन. 7 घंटे सब सोते हैं, हो गए 18 घंटे. 2 घंटा तो हर किसी को लगता है तैयार होके, नहा धो के, खाना पका के खाने में. कम ले रहा हूँ मैं, फिर भी 2 घंटा लेता हूँ, हो गए 20 घंटे. अब आपके दिन के 20 घंटे इन 3 चीजों में चले गए. किसमें? काम करने में, तैयार होके खाने में, सोने में. अब आपकी शरीर की जरूरत है, आपके मन की जरूरत है, आपके परिवार की जरूरत है, सोसाइटी के नीड्स, इमरजेंसीज, सोशल गैदरिंग्स लाइक दिस, आपके खुद के पेरेंट्स की साइड, आपके इन लॉज की साइड की नीड्स, बच्चों के स्कूल्स में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आ गई, उसके ऊपर में आपका सोशल मीडिया यूसेज, इंस्टा स्टोरीज हो या यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस हो या रील्स हो या कुछ भी हो, टिकटॉक भी बहुत चल रहा है आजकल. अब ये सारा का सारा, प्लस अगर कोई स्पिरिचुअली कुछ करना चाहता है तो उसका भगवान से जो डेली बेसिस का जो पूजा पाठ कनेक्शन है, ये सारा का सारा आपको 4 घंटे में फिट करना है. सोच रहे हो लाइफ का 3 चीजें होती है 20 घंटे में, बाकी सब कुछ होता है इस 4 घंटे में. अब जिसको लाइफ बैलेंस का स्किल आया नहीं, तो वो 4 घंटे में भी सोचेगा मैं ओवर टाइम कर लेता हूँ, ओवर चला लेता हूँ थोड़ी. यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउ आवर कैलकुलेशन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल एंड हैप्पी इज सो मिसडायरेक्टेड. कितना ऑफ है. पूरा दुनिया इस 4 घंटे में समेटना था हमने उसमें भी टाइम खो दिया. अब जो इस स्किल को नहीं सीखा, लाइफ बैलेंस स्किल को, स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ, उसको बहुत कठिनाई आएगी. और वो कठिनाई का पहला सिम्टम क्या होगा पता है? एंजाइटी, स्ट्रेस और टू मच प्रेशर, जो उसको अनवांटेड सोर्सेज से आएगा, विच कैन लीड टू सीरियस डिप्रेसिव माइंडसेट या स्टेट. मैं यहाँ पूछूंगा नहीं कौन डिप्रेशन से गुजरे है, किसने टेस्ट किया डिप्रेशन, हरे कृष्ण. बट द फैक्ट इज हम सब उसके आसपास से होके तो गुजरते हैं, और बहुत बारी गुजरते हैं. ऑस्ट्रेलिया का एक स्टैट्स दूं आपको, हैरान हो जाओगे. इंडिया का भी देता हूँ. फिर जब कोविड हिट किया था, तो कोविड में 2020 का स्टैट्स है ये, जब तक कोविड की वजह से 950 लोग मरे थे, तब तक 1000 लोगों ने सुसाइड कर लिया था ऑस्ट्रेलिया में. समझ रहे? इंडिया में 90 मिलियन लोग इस समय साइकेट्रिक हेल्प ले रहे हैं. और इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पे मेंटल डिजीज इज टैबू. आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो लोगों से. ये सारे सिटीज का बता रहा हूं मैं आपको. छोटे 2 tier 3 tier टाउन विलेजेस का तो छोड़ ही दो. 90 मिलियन लोग प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं, रिकॉर्डेड ऑन रेगुलर बेसिस. बैंगलोर, कोई है बैंगलोर से यहाँ पे? आप हो? बैंगलोर विच बिकेम सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया, बट बिफोर दैट वो क्या था? आईटी हब ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. वो कहां लीड करके ले गया? सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया. जापान में वर्क लोड, ये लाइफ बैलेंस ना होने की वजह से, जीवन के पर्पस को डिफाइन ना करने की वजह से, वहां पे एक टर्म है, उसको बोलते हैं करोशी. वो पता, उसका मतलब पता है किसी को क्या होता है? करोशी. करोशी का मतलब है प्लान्ड सुसाइड. वेबसाइट्स हैं जहां पे ग्रुप में लोग मिलते हैं, और ग्रुप में लोग मिलके क्या करते हैं? कुछ टीवी देख लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया, चिल कर लिया, मूवी देखने चले गए,
एक्सरसाइज कर ली, कुछ ना कुछ कर लिए। ये ग्रुप में स्वाहा, कार में डालेंगे 5 लोग खुद को, कार को करेंगे लॉक, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करेंगे, चलती कार को हिल के पास लेके जाके। गवर्नमेंट का इतना एफर्ट जा रहा है टू ट्रेस आउट ये डार्क वेब पे वेबसाइट्स को। कुछ कंट्रीज में डार्क वेब पे पॉर्न साइट्स को ट्रैक करने की हेडेक है। इन जगहों पे डार्क वेब पे ये साइट्स को हैक करने की गवर्नमेंट ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। क्यों है ये? सिर्फ एक कारण से। सारा का सारा एफर्ट 24 के 24 घंटे हमारे दिन के सिर्फ 2 नीड्स को पूरी करने में जा रहे हैं, विच इज योर फिजिकल एंड योर मेंटल नीड। और उसमें भी सबसे ज्यादा टाइम जाता है अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने। बट एक थर्ड एस्पेक्ट जिसके बारे में भगवदगीता बहुत केयरफुली, बहुत डायरेक्टली टच कर रही है, उसको कोई टच भी नहीं करता, बात भी नहीं करता उस बारे में। एनी गेसेस व्हाट इज दैट? इमोशनल, स्पिरिचुअल। नॉट इमोशनल। इमोशनल तो इज अ डिस्प्ले ऑफ माइंड की नीड। आत्मा। सो आत्मा की जरूरत क्या है? अभी सुन के लगेगा चलो इतनी बात करके आ गया है आ गया मुद्दे पे। बट द फैक्ट इज हाउ कैन यू रन अवे फ्रॉम इट? पड़ोसी की नहीं है आत्मा, आप ही हो। और किसी की बात ही नहीं कर रहे हम, आप ही की बात हो रही है। भगवान के लिए थोड़ी ना करना है सब, अपने लिए करना है। मेरे पिताजी का अगर अभी यहाँ देहांत हो जाए और सामने लेटे और मैं रो रहा हूँ, हाय मेरे पिताजी छोड़ के चले गए, मेरे पिताजी छोड़ के चले गए, आप सामने से आके बोलोगे तू कितना मूर्ख है, सामने तो लेटे हुए हैं, क्यों रो रहा है? बोले नहीं वो चले गए, अरे वो चले गए। बोले कहाँ चले गए? सामने तो लेटे हैं। हम सबको पता है जो सामने लेटा है वो मेरा पिता नहीं है, जो चला गया वो मेरा पिता था। बट द आयरनी इज मैंने पूरा जीवन जो सामने लेटा उसी को पिता माना, उसी को पत्नी माना, उसी को माँ माना, उसी को बच्चे माने, उसी को दोस्त माना जो सामने लेटा है। बट अभी जो एक्चुअल में वो पिता थे, जो मुझे चाहिए नहीं थे, वो तो चले गए, जिनसे मैंने कभी कनेक्ट नहीं किया। ये जिनको पिता माना जीवन भर, अभी मुझे घर में चाहिए नहीं क्योंकि स्मेल आएगी, डर लगता है, इसलिए संस्कार करो। बट जिनको एक्चुअली पिता मानना चाहिए था उनसे कभी रिश्ता ही नहीं हुआ। इफ यू रियली रिफ्लेक्ट, और मैं ऑनेस्टली ये सब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम इस बारे में सोचते नहीं, एंड आई एम यूटिलाइजिंग दिस ओकेजन टू थिंक अबाउट इट। इस बारे में सोचो तो सही, कभी तो सोचें कि द रियल पर्सन विद इन, उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं जा रहा। 4 दोस्तों ने डिसाइड किया एक बारी कि हम अपने घर में ऐसे बड़े से लॉन्ज रूम में एक पिंजरा लगाएंगे, उसमें चिड़िया रखेंगे। तो अब 4 दोस्त थे, एक मल्टी मिलियनर था, एक मिडिल क्लास का था, एक लोअर मिडिल क्लास का था, एक बहुत ही गरीब थे। अब ये चारों अपनी अपनी कैपेसिटी से पिंजरा लेने गए। अब जो गरीब था उसने तो लकड़ का पिंजरा लिया, हल्का सा जो उसको मिल सका। लोअर मिडिल क्लास ने बोला नहीं मेरे मेन लॉन्ज रूम में लगना है तो आई विल इन्वेस्ट, ये मेरे लिए एक बड़ी सिल्वर कोटिंग की मुझे बहुत सुंदर आइटम बन जाएगी। जो मिडिल क्लास था उसने बोला मुझे गोल्ड कोटिंग वाला चाहिए। जो मल्टी मिलियनर था उसने बोला मुझे कोटिंग वोटिंग नहीं चाहिए, मुझे तो प्लैटिनम का चाहिए, उस पर भी डायमंड लगाऊंगा। तो वो लाए अपने अपने घर, चिड़िया को लेके आए थे और वेरी अट्रैक्टेड बाय द होल कॉन्सेप्ट की, अरे छोटी सी चिड़िया है, चहक रही है, ऑल दैट और पिंजरा है। तो चारों गए, हर हफ्ते मिलते थे ये लोग अपने अपने शरबत पे शरबत पार्टी पे तो वापस मिले एक हफ्ते बाद ये सारे दोस्त, बोले यार प्रॉब्लम है, और चारों की सेम प्रॉब्लम है यार, वो पिंजरे में वो बात नहीं रही जो पहले थी। तो बोला यार मैं तो सबसे महंगी प्लैटिनम पॉलिश लेके आया था, घर जाने के बाद मेरी बीवी ने अपने सबसे फेवरेट जूस भी लगाए इसके ऊपर, गोल्ड वाला। बोला मैंने भी यार रियल पॉलिश लाया, मैंने पानी वानी से साफ नहीं किया उसको। सिल्वर वाला भी बोला, लकड़ वाला भी बोल रहा है यार मैं भी बहुत केयरफुल इसको रोज सफाई कर रहा था। बट वो बात ही नहीं है इस पिंजरे में जो पहले दिन थी। तो ये चारों बड़ा चिंतित होने लगे, और वहां पे इनके साथ में एक और शरबत पी रहे थे, वो थोड़े समझदार था। वो बोला मैं किसी को जानता हूं जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, चलो मेरे साथ। तो वो एक गुरुजी के पास इनको लेके गए।
बोले स्वामी जी ऐसे ऐसे इनका ये प्रॉब्लम हुई है, कैन यू सॉल्व? तो स्वामी जी ने पहला क्वेश्चन यही पूछा, बेटा तुमने पिंजरा तो साफ किया, चिड़िया को खिलाया कि नहीं? बोले अच्छा वो भी करना होता है। बोले चिड़िया को तो हम खिलाना ही भूल गए, तभी वो पिंजरे में चहक खत्म हो गई। हम तो साफ ही करते रह गए उस पिंजरे को, और अंदर चिड़िया बेचारी वीक होकर मुरझाई पड़ी है। इसलिए इसमें लाइफ नहीं है, उसमें चहक नहीं है। हम सबके जीवन एग्जैक्टली वही पिंजरे वाले की तरह है। इतना ज्यादा चमकाना चल रहा है अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और सब कर रहे हैं। हाँ, सब ने चूज कर रखा है, इससे ग्रूमिंग करानी है, ये ब्यूटी पार्लर चाहिए, ऐसा ही घर चाहिए, ये सबब चाहिए, इस फैशन का हेयर स्टाइल चाहिए, ये ब्रांड के कपड़े चाहिए, गाड़ी भी वैसी चाहिए। आत्मा का क्या? आत्मा का क्या? कोई और आगे करेगा। हमें तो करना है, मेरी तो ड्यूटी है, क्योंकि मेरी ही आत्मा है, किसी और के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा। अब ये एक सिंपल प्रिंसिपल लाइफ से मिस होने की वजह से लाइफ से चहक चली जाती है। यू नो मोर हैप्पी। सिर्फ दिन काट रहे हैं, और जो प्रेशर बना रखा है आसपास उसके बेसिस पे वो कंफर्मिटी के हिसाब से टिक लगाए जा रहे हैं। और वो टिक कैसा लग रहा है? अच्छा करवा चौथ मेहंदी लगवाई थी, हाँ लगवा ली थी। अच्छा करवा चौथ कपड़े नहीं ले लिए थे, हाँ ले लिए थे। अच्छा ये कर लिया था, टिक 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 टिक। मेरी खुद की कजन का बता रहा हूं मैं आपको। अभी वो गोवा गई, उसकी बेटी यहाँ पे है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है, इसलिए उसने अपनी बेटी को यहाँ भेजा हुआ है कि तू जा, तू सेटल हो, हम कुछ नहीं कर सकते तेरे लिए ज्यादा वहां पे। अब वो यहाँ पे इतनी मेहनत कर रही है सुपरमार्केट में काम करके। अब उसकी मम्मी वहां गई, बेटी ने बोला तुम जाओ, छुट्टी पे जाओ, मेरी तरफ से मैं स्पॉन्सर करती हूँ, तुम जाओ। वहां पे जाके सिर्फ अच्छी फोटो खिंचाने के लिए उसने 32,000 रुपीज का गुच्ची का गॉगल्स खरीद लिए कि फोटो में आएगा गुच्ची लिखा है यहाँ पे। उसने अपनी बेटी को बताया, वो इतना रोई, इतना रोई। उसको बोली तुम्हें पता भी है मैं कैसे यहाँ काम कर रही हूँ, और तुम किस पर्पस के लिए क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें खुश करने के लिए भेजा था कि चलो तुम इतने समय से हार्डशिप से गुजर रही हो, जाके यू कैन जस्ट एंजॉय समथिंग। और मेरी खुद की सिस्टर बता रही थी, क्योंकि मेरी कजन है तो मेरी सिस्टर आपस में बात करते हैं, कहती है उसको 1% भी समझा नहीं। She was so engrossed in taking photos and posting these photos and showing it to everyone. एक बार ये बहुत बार ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरे भगवान इतने दयालु हैं, इतने अच्छे हैं, तो ये जगत में हमें भेजा ही क्यों है, इतने दुख संसार में? ये क्वेश्चन आता है कि नहीं बहुत बार? यहाँ पे भेजा ही क्यों है इतना कष्ट भोगने के लिए? फिर खुद ही आके गीता में बोल रहे हैं कि निकलो इस कष्ट भरे संसार से और आओ वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में, जो प्लेजर हैप्पी स्टेट है स्पिरिचुअल रेल्म में। तो भेजा क्यों है यहाँ पे? फिर एक बार एक पिता अपने बच्चे के साथ गाड़ी पे जा रहे होते हैं, 3-4 साल का बच्चा होता है, छोटा सा, साइड में बैठा होता है। पापा गाड़ी चला रहे हो तो बेटा बोलता है पापा मुझे गाड़ी चलानी है। पापा बोलते हैं हाँ ठीक है शांति बैठा रहे। बोले नहीं मुझे गाड़ी चलानी है। तो पापा बोलते ठीक है, बच्चा जिद कर रहा है तो गोदी में बिठा लेते हैं, आके स्टीयरिंग देख ले, संभाल ले। हम सब ने ऐसी सीखी थी कार, पहले स्टीयरिंग में बैठे थे। बोलते पापा को नहीं आप वहां जाके बैठो, मुझे गाड़ी चलानी है। तो पापा बोल रहे तेरे को थप्पड़ पड़ेगा, चुपचाप वहां जाके बैठ जा, तू 3-4 साल का बच्चा, तेरा पाँव नहीं पहुंचते नीचे, तू गाड़ी कैसे चलाएगा? बच्चा इतना रोने लगा, इतने टैंट्रम फेंकने लगा, पापा को फोर्सफुली जाके उसको अम्यूजमेंट पार्क में लेके गए और वहां पे उसको बोला जा अब तू बैठ इस टॉय कार में और एक्सपीरियंस कर हाउ लाइफ इज यू बीइंग द सेंटर। जब एक लिविंग एंटिटी, एक जीवात्मा, जो आत्मा, जो भगवान का अंश है, जो प्योर अंश है, जब वो खुद को सेंटर मान के खुद के इर्द गिर्द ही जीवन जीना चाहता है, उसको इस संसार में भेजा जाता है उस बच्चे की तरह कि जा अब तू एक्सपीरियंस कर व्हाट इट मीन्स टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम गॉड इन योर ओन आइडेंटिटी। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज हम सारे के सारे एक बड़े
कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लेके चल रहे हैं इस जीवन में, और वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है पता है? हर किसी को लगता है वो सेंटर है यूनिवर्स का। हर एक व्यक्ति को लगता है कि उसी के इर्द गिर्द जगत घूम रहा है, और वो बिहेव भी वैसे करता है, एक्सपेक्टेशन भी वैसी होती है, घर परिवार में भी वैसे ही एक्सपेक्ट करता है कि उसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। मैं एक बार एक प्रोग्राम में बता रहा था, पीपल रियली अग्री टू इट, स्पेशली कोई शादी हो, कोई इवेंट हो, तो मैन अपने स्टाइल में तैयार होते हैं, लेडीज अपने स्टाइल में तैयार होती हैं, किसको कितना टाइम लगता है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बट दोनों तैयार होकर जाते हैं, राइट? हर किसी को यही लगता है शादी में सब मुझे ही देख रहे हैं। हर किसी को यही लगता है कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, बट द फैक्ट इज सामने वाले को भी यही लग रहा है। और उस शादी में अगर 600 लोग हैं तो 600 को यही लग रहा है कि सब मुझे देख रहे हैं। ये इतना क्लासिक सिम्टम है इस जगत का, जहां पे हर कोई ये सोच रहा है आई एम द सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स, आई एम द अट्रैक्शन, एवरीथिंग शुड रोटेट अराउंड मी। इसीलिए घर परिवार में जो घर का लाइफस्टाइल अगर गॉड सेंटर्ड नहीं होता तो आप नोटिस करोगे अननेसेसरी कलेश हर समय होते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज इस रूम को अब इमेजिन करो एक पॉन्ड है, अगर एक कमरा जैसे एक पॉन्ड की तरह इमेजिन करो, घर में 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है। अब 2 बच्चों ने, हस्बैंड वाइफ ने, चारों ने 4 अलग कोने से पत्थर फेंके इस पॉन्ड में, तो पॉन्ड एक रिपल्स बनाता है ना, सर्कल्स क्रिएट करता है, तो वो चारों जाएंगे आपस में टकराएंगे। बट इसी पॉन्ड के आसपास में अगर 1000 लोग खड़ा कर दो और सबको बोलो एक ही सेंटर में पत्थर फेंकना है, कोई क्लैश नहीं होगा, क्योंकि जो सर्कल्स क्रिएट होंगे वो एक सेंटर से होंगे। इसीलिए जब फैमिलीज में गॉड सेंटर्ड लाइफ जी जाती है, भगवान को बीच में रख के जीवन जिया जाता है, तो बच्चों को भी वो स्पिरिचुअल वैल्यूज मिलती हैं, खुद भी व्यक्ति उसी वैल्यूज के ऊपर जीवन जीता है। और वो अननेसेसरी जो एंजाइटी परिवार में हम देखते हैं ना, यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड योर नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम दैट। हम गर्व से तो बोलते हैं, गर्व से बोलो हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम वोट उसी पार्टी को देंगे जो उसको सपोर्ट करेगा, ब्ला ब्ला व्हाटएवर, दैट इज ऑल फाइन। कर क्या रहे हो उसके लिए? वी डोंट इवन नो कि मेरा स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, आई एम सोल स्टक विद इन दिस बॉडी। अभी मैं किसी को यहाँ पे बुला के अगर बोलूं चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हु इज हियर फॉर सच प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन पहली बार ऐसे प्रोग्राम में आ रहा है? आप आ जाओ, लेट्स डू दिस स्मॉल एक्सपेरिमेंट। आपका नाम क्या है? शरद। फर्स्ट ऑफ ऑल शरद यहाँ आ जाओ, प्लीज यू कैन फेस द पीपल। ओके, मैं आपको सिर्फ सिंपल इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आपको बस फॉलो करते जाना। शरद, प्लीज टच योर हेड। आपके शोल्डर्स पे हाथ लगाओ, आपकी एल्बोस को हाथ लगाओ, आपकी नी को हाथ लगाओ, आपके नोज को हाथ लगाओ, खुद को हाथ लगाओ, ये तो सर है, खुद को हाथ लगाओ। हाँ लगाओ, टच योरसेल्फ, ये तो आपकी चेस्ट है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये सिंपल एक्सपेरिमेंट में करा था कि अगर मैं व्यक्ति को बोलूं टच योरसेल्फ, मैक्सिमम क्या करता है पता है? दिस इज मी बॉस, अकॉर्डिंग टू करंट मॉडर्न डे साइंस। थैंक यू अगेन। अकॉर्डिंग टू करंट मॉडर्न डे साइंस, विच इज लकी दैट वी हैव दिस फिंगर्स एटलीस्ट, क्योंकि भगवत गीता तो 5000 साल पहले सेम बात बोल ही रही थी। Almost every 6.5 to 7 years, 100% of your body and brain cells they get rejuvenated, brand new. Practically हर 7 साल में आपका brand new body है। We are nothing but combination of cells ना, तो cells बना के हमारा शरीर बनता है। Almost हर 7 साल में आपका body brand new हो जाता है। अब वो एकदम नहीं होता, धीरे धीरे नए cells आ रहे हैं, पुराने die हो रहे हैं, जो the whole cycle takes place। मतलब मैं अगर 35 इयर्स का हूं तो मैं 5 बारी शरीर चेंज कर चुका हूं। तो तुम कौन से शरीर हो कौन तुम? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिंपल फिलॉसफी को समझना। और ये हिंदू माइथोलॉजी नहीं है, दिस इज रियलिटी। दैट सोल जो ट्रांसमाइग्रेट कर रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी में, और जब ये शरीर यूजलेस हो जाता है तो वो वापस से एक और बॉडी में मूव कर जाती है आत्मा। मैं भगवद गीता का एक श्लोक बोलूंगा, यू कैन रिपीट आफ्टर मी, बहुत ऑस्पिशियस होता है गीता को चैंट करना।
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे ट्राई अगेन एवरीवन देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस तरह एक छोटे बच्चे की बॉडी से एडल्टहुड में और फिर ओल्ड एज में वही सेम सोल ट्रांसमाइग्रेट कर रही है, मूव कर रही है, सिर्फ बॉडी चेंज होती जा रही है। हमें क्या लगता है बॉडी ग्रो कर रही है, एक्चुअली ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम चेंज हो रहे हैं। इसीलिए छोटे बच्चे सिर्फ जब बड़े बच्चे में हम एडल्टहुड में आते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे घर वाले रो रहे हैं, अरे मेरा 5 साल का बच्चा छोड़ के चला गया अरे मेरा 5 साल का बच्चा कहाँ गया वी नो कि चेंज हो गया है, बट इल्यूजन का कवरिंग ऐसा है कि उस ट्रांसमाइग्रेशन, उस चेंज को हम ग्रोथ की तरह ट्रीट करते हैं। कौमारम यौवनम जरा, फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, सोल मूव्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी में। तथा देहांतर प्राप्ति, यही आत्मा जब ये शरीर यूजलेस हो जाता है उसी शरीर को छोड़ के दूसरी बॉडी में चली जाती है। धीरस तत्र न मुह्यति, जिसको ये सिद्धांत समझता है, जो धीर व्यक्ति है, जिसको ये सिंपल चेंज समझता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ऑलरेडी बहुत बड़ी शिफ्ट कर चुकी है इस शरीर में, अब वो न्यू फ्रेश बॉडी में जा रही है, ना मुह्यति, वो बिविल्डर होकर परेशान नहीं होता। नेचुरल अटैचमेंट के कारण दुख होता है, बट उसको ये हायर प्रिंसिपल समझता है कि सोल तो जर्नी पे है अपनी। मैं एक बार स्ट्रीट सिटी में भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो एक क्रिश्चियन लड़का आया, वेरी नाइस बॉय एक्चुअली, यंग लड़का था, ऑस्ट्रेलियन था। तो मैंने उसको भगवद गीता दिखाई, तो मैं उसको जनरली बोला था, ये भगवद गीता टॉक्स अबाउट कर्मा, रीइंकार्नेशन, सोल एंड ऑल दैट, तुमने सुना इस बारे में? अब वो क्रिश्चियन फेथ से, तो वो बोला कि कर्मा रीइंकार्नेशन कुछ नहीं होता हमारे हिसाब से। तो मैंने उसको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ये सेम क्वेश्चन मैं आपके सामने एग्जैक्टली बता रहा हूँ जो मेरी उससे बात हुई। एक बच्चा अमीर घर में पैदा होता है, एक मिडिल क्लास में पैदा होता है, एक गरीब घर में पैदा होता है, एक हैंडीकैप पैदा होता है। 4 टाइप के डिफरेंट बच्चे हैं। क्या डिसाइड करता है कि ये चारों बच्चे अलग अलग सिचुएशन में पैदा हुए हैं? अब रीइंकार्नेशन तो होता नहीं तुम्हारे हिसाब से, सोल तो अपनी जर्नी पे है ही नहीं। तुम ओनली एक ही बारी जन्म लेते हो, यू ओनली लिव वंस, राइट? तुम एक ही बारी जन्म लेते हो, इसके बाद मर जाते हो। तो क्या फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि वो एक बच्चा गरीब घर में पैदा हो रहा है, एक अपाहिज पैदा हो रहा है, एक बहुत पैसे वाले घर में पैदा हो रहा है? क्या फैक्टर डिसाइड करता है? उसने पता क्या आंसर दिया? गुड लक, बैड लक। अच्छा, तू मुझे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि भगवान वहां पे बाल्टी लेके बैठा है, उसमें सबके नाम की पर्ची है, जिसका गुड लक आया उसकी पर्ची अमीर घर की, जिसका बैड लक आया वो अपाहिज। इज दैट सिंपल? इसे ऐसा ही सोच लो। ऐसे देन हाउ डू यू क्लेम गॉड इज गुड? किस तरह बोल सकते हो कि भगवान बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत इक्वल हैं, सबके प्रति समभाव रखते हैं? ये तो संभाव नहीं हुआ, ये तो लॉटरी सिस्टम हुआ। तुम ऑस्ट्रेलिया में जन्म लो, तुम झुग्गियों में जन्म लो, तुम माँ के गर्भ में अबॉर्शन में मर जाओ। कौन डिसाइड कर रहा है सर? व्हाट डू यू थिंक? क्या फैक्टर डिसाइड कर रहा है? और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे हमारे जीवन में हजारों घटना घटती है, जिसके पीछे हमारा पीछे का कारण क्या है? आप सबको आंसर पता है क्या होगा इसका कारण? कर्म। बट अब हमने कितनी बार सुन लिया, ऑनेस्टली बताना, कर्म होते हैं, अच्छे कर्म करो तो बुरे नहीं करो, बट डज इट रियली टच आवर हार्ट? डू वी रियली थिंक डीपली अबाउट इट? हम सोचते हैं कि इस बारे में जीवन उस हिसाब से चेंज करने के लिए? अगर मेरे पास्ट में इतनी शक्ति थी कि उसने मेरा प्रेजेंट डिसाइड किया कि मैं किस घर में जन्म लूं, किस परिवार में, कैसे स्पीशी में, कैसे जेंडर में, क्या नेशनैलिटी हो, क्या इंटेलिजेंस हो, ब्यूटी क्या हो, कैसा स्किन कलर हो, अगर उसमें इतनी शक्ति थी कि मेरे पास्ट ने डिसाइड किया, इसका मतलब है मेरे प्रेजेंट में, मेरे हाथ में वो शक्ति है कि अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकता हूं। बट हम कैसे हैं? हम फ्यूचर में जाके यही डायलॉग मारेंगे वापस से कि मेरे पास्ट में वो शक्ति थी कि मेरा प्रेजेंट बना, मैं फ्यूचर चेंज कर सकता हूं। फिर आगे जाके फिर यही बात बोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं
हम चेंज नहीं करेंगे, we'll really not take concrete steps, इस बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्लास खत्म होगी, प्रसाद होगा, सब बात करेंगे, घर जाएंगे, कल मंडे, काम वापस शुरू, that's it. No one will even question again. प्लीज मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे, ऐसा मत करना। The force of energy of Lord, material energy, जो माया की शक्ति है वो आपको फोर्स करेगी ये करने पे कि आप नहीं डिस्कस करोगे इस बारे में, पर प्लीज करना। किसी का भला नहीं होने वाला, भगवान को कोई फायदा नहीं मिलने वाला इससे, हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ये प्योरली आपके लिए। अभी वो क्या समझाएं इस व्यक्ति को हमें क्या समझाएं, क्या फैक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं इतने डिस्पैरिटी होने का, इतने चेंजेस होने का सोसाइटी में, हमारी खुद की लाइफ में इतने एक्सट्रीम चेंजेस आने का? हमारे ही एक्शन है। और जिस व्यक्ति को ये बात नहीं समझी वो जीवन भर दूसरों को ही ब्लेम करता, गाली देता, मर जाता। उसकी वजह से मैं ऐसा हूं, उसकी वजह से ऐसा दुखी हूं। मैं क्यों परेशान हूं? बिकॉज मेरे कॉलेज में, मेरे क्लास में माय मेट्स आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस, दे बिहेव लाइक दिस। मैं ऐसा क्यों? मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी है। मेरा खुद का एक दोस्त है, उसकी हाइट बहुत छोटी है, 5 फुट 4 इंच कुछ है, तो उसका बहुत मजाक उड़ाता है सारा दोस्त। तो वो लिटरली अपने माँ बाप से जाके लड़ा कि तुम्हारी वजह से मैं छोटा हूं, क्योंकि तुम छोटे हो हाइट में। कैन यू इमेजिन? वो अपने माँ बाप को जाके लड़ाई करी उसने, वो 12th या फर्स्ट ईयर में कहीं तो था। और अभी वो इतना हंसता है अपनी इस हरकत पे, क्योंकि तो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, उसके 2 बच्चे भी हैं, कि मैं क्या बिहेव कर रहा था और किस तरह बिहेव कर रहा था। मैं क्या जाके अपने माँ बाप को कंप्लेन कर रहा था कि तुम्हारी हाइट छोटी है इसलिए मेरी हाइट छोटी है, इसलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। नथिंग मूव्स इन दिस वर्ल्ड। अगर आपने वो कार्य नहीं किया तो आपको सुख और दुख देने की क्षमता किसी में नहीं है, आप ही हो। मैं अगर बैट लेके शरद को पीटूं तो शरद बैट पे केस थोड़ी ना करेगा, मेरे पे केस करेगा ना। सपोज करो उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी, इस बैट को जेल में डालो, यू विल कॉल हिम, तेरा सच्ची में बैट सर पे लग गया भाई। कुछ तो गलत जगह पे तेरे को बैट लग गया भाई, जिसने मारा उस पर कंप्लेन करना। बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। इस जगत में जितने लोग हैं हमें सुख और दुख देने वाले, हम उन्हीं को कंग्रेचुलेट करते हैं और उन्हीं को गाली देते हैं जो दुख देता है, और कंग्रेचुलेट करते हैं जिसने हमें सुख दिया। और ये भूल ही जाते हैं कि इट वॉज मी, माई ओन एक्शंस, जिसकी वजह से ये इंस्ट्रूमेंट बन के आया मुझे सुख और दुख देने के लिए। पता है कितने परिवार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ये प्रिंसिपल समझ गए तो। सच्ची ना? सिर्फ ये छोटा सा प्रिंसिपल समझ गए तो एवरीवन इज एक्टिंग लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। कारण मैं हूं। और जब व्यक्ति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ले लेता है, ब्लेम नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ले लेता है, उसका एक प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है। वो बहुत केयरफुल होता है अपने करंट एक्शंस को लेकर, क्योंकि उसके पास्ट ने उसका प्रेजेंट बनाया है। उसको ये सिद्धांत क्लियर है कि मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में इस समय है, मैं कुछ कर रहा हूं कि नहीं उसके बारे में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम तीनों एस्पेक्ट्स को नरिश करें। शरीर की जरूरत है, मन की, इमोशनल नीड्स हमारी, और आत्मा की नीड। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भगवदगीता में जो उठ के आता है वो है कि सोल को नरिश किया कैसे जाए। करना क्या होता है सोल को नरिश करने के लिए? शरीर का हमें पता है, मन का भी हमें आइडिया है, बट सोल को नरिश किया कैसे जाए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल जो भगवान का अंश है, आत्मा का तो माँ बाप ने प्रोड्यूस किया नहीं, माँ बाप ने तो शरीर दिया है और ये शरीर थोड़े समय में चला जाएगा। बट वो क्या फोर्स है इस शरीर के अंदर जो परमानेंटली एग्जिस्ट कर रहा है? वो क्या फोर्स है शरीर के अंदर जो परमानेंटली चल रहा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, दूसरी स्पीशी। इस जन्म में आप बोल सकते हो पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, अगले जन्म पाकिस्तान में ले ले तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलोगे। एज एन एंटिटी, एज लाइफ विद इन दिस बॉडी आप मूव कर रहे हो। वो इटर्नल रियलिटी है हमारी, और ये टेम्पररी रियलिटी हमारी हर बारी चेंज होती है। 60, 70, 80 साल का पैकेज है, सारे रिश्तेदार नए आते हैं, वो पैकेज में अच्छे से अपनी ड्यूटीज करो एंड देन मूव टू न्यू पैकेज, टू न्यू पैकेज, टू न्यू पैकेज। क्या करना होगा उस सोल को नरिश करने के लिए? वो केवल और केवल वही एक्टिविटी कर सकती है जो उस सोल के सोर्स से रिलेटेड हो, जो उस सोल को, आत्मा का जो सोर्स है उसके गैप को ब्रिज करने में मदद करे। छोटे बच्चे हैं ना,
आपकी बेटी का नाम क्या है? वान्या। हाँ? वान्या। वान्या। वान्या को अगर सुखी रहना है उसको सिर्फ एक ही चीज करनी है, कोऑपरेट विद मदर एंड फादर। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है उसको सिर्फ एक प्रिंसिपल अगर क्लिक हो गया कि मुझे मेरे पापा मम्मी के साथ कोऑपरेट करना है, मेरा लाइफ सेट है बस। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है। प्रॉब्लम क्या आती है, जब ये बड़ी हो जाएगी इसको लगेगा ये इंडिपेंडेंट है और फिर ये विद्रोह करेगी, ये रिबेल मोड पे आ जाएगी। होपफुली ना आए, बट दिस इज जनरल पैटर्न। आत्मा जो भगवान का अंश है उसको सुखी रहने के लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है, भगवान के साथ कोऑपरेट। और वो कोऑपरेशन होगी भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप रीएस्टैब्लिश करने में। भगवान का प्लान समझे तो सही। हम सब ने अपनी अपनी डेफिनेशन बनाई है ना रिलीजन की, भगवान से कनेक्शन की। अभी किसी व्यक्ति को बोले मैकेनिक के पास क्यों जाना है, तो उसको पता गाड़ी ठीक कराने जा रहा हूँ। आप मैकेनिक के पास जाके बोलोगे नहीं यार बड़े दिन हो गए, सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, करिए ठीक। आप किसी की कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाके ये नहीं बोलोगे कि मेरा ना टूटी लीक कर रही है घर में, तुम्हारे पास तो बड़ी सारी टेप पड़ी है यहाँ पे। वी वेरी क्लियरली नो किसके पास हम क्यों जा रहे हैं, किस व्यक्ति का किस प्रोफेशन का क्या पर्पस है। मंदिर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी अनक्लियर हमारा पैटर्न्स हैं कि हमें पता ही नहीं जाना क्यों है। क्यों जाना है बहुत क्लियरली स्क्रिप्चर में मेंशन्ड है, शास्त्रों में मेंशन्ड है, भगवद गीता में मेंशन्ड है। आपको मंदिर जाना है भगवान से अपना पुनः दोबारा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। उसके लिए मंदिर का स्थापना की जाती है कि एक ऐसी जगह हो जहां पे आप इस जगत की चीजें नहीं, आप अपना भगवान से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो। क्योंकि वो ब्रिज जितना गैप उसका कम होता जाएगा उतनी ही सोल को नरिशमेंट मिलती जाएगी, उतना ही आप इंटरनली पीसफुल होते जाओगे। वो होता कैसे, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं उसको करने के लिए। गीता में भगवान 4 प्रकार के योगा सिस्टम बता रहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। अपने कर्मों से करो, तुम नॉलेज से करो, तुम योगा करके करो, और फिर लिव एंड एक्ट इन डिवोशन। अब पूरी गीता में भगवान ने चारों योग जब बता दिए तो अर्जुन को एंड में आके पता क्या बोल रहे भगवान, ये चारों योग तो अर्जुन तुम्हें मैंने बता दिए, बट कलयुग में सबसे सुखी सबसे इजी तरीका मुझसे कनेक्ट होने का क्या है, एक्ट एंड वर्क इन डिवोशन। क्यों? क्योंकि ज्ञान योग और अष्टांग योग की पहली रिक्वायरमेंट पता है क्या, संन्यास लेना, घर परिवार छोड़ के चले जाना। अब वो कैसे करें, बहुत कम लोग कर पाएंगे। दैट मीन्स क्या, भगवान को बड़े हार्ड हार्टेड है क्योंकि ऐसा प्रोसेस दिया कि जो सिर्फ लेस देन 1% लोग कर सकते हैं, तो 99% कहाँ जाएंगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई, जो एक फैमिली मैन था। अर्जुन को भगवान ने उसके थ्रू भगवान ने ये शिक्षा दी कि कैसे मुझसे कनेक्ट करना है, त्याग के नहीं। इसलिए भगवद गीता का सिद्धांत क्या है, ना भोगना है, भोगना मतलब सेंस एंजॉयमेंट, ना भागना है, हमें जागना है। हमारे रिलेशनशिप भगवान के साथ क्या है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स में भगवान ने भगवद गीता में एक्सप्लेन किया कि यू जस्ट बी हु यू आर, एक्ट इन डिवोशन। खाना सारे खाते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है अगर हम भगवान के लिए कुछ अच्छे से एप्पल कुछ फ्रूट्स काट के भगवान को बोले प्लीज एक्सेप्ट इट, आपने इतना कुछ दिया है, थैंक यू सो मच, ये आपके लिए। दैट्स अ एक्ट ऑफ डिवोशन। और फिर उसको खाओ, वो प्रसाद हो गया। हम सारे जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, हम क्यों भगवान को नहीं बोल सकते जाने से पहले कि यू बीन सो काइंड, कि आपने मुझे सारी फैसिलिटीज दी हैं, मैं अब काम पे जा रहा हूँ मालिक बन के नहीं, आपका ऑर्डर कैरियर बन के। ये फैमिली का राजा नहीं हूं मैं, आपके बिहाफ पे इस फैमिली का ध्यान रखने के लिए हूं मैं। कोई गृह प्रवेश करता है, नए घर में आता है, वो क्यों नहीं ये सोच सकता कि घर भगवान का, आई एम अ केयर टेकर। ये गॉड सेंटर्ड लाइफ जीने का एक सिंपल प्रिंसिपल है, एक्ट इन डिवोशन। भगवान ने अर्जुन को बोला निमित्त मात्र भवे सर्वसाची, अर्जुन यू गो एंड यू फाइट, तू जाके बैटल जीत ले, सारा क्रेडिट ले जा, बट मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट बन के कर। युद्ध शुरू होने से पहले भगवान ने गीता सुनाई। 11वें चैप्टर में भगवान अर्जुन को ऑलरेडी दिखा दिया कि मैंने युद्ध में सबको मार दिया, सारे के सारे योद्धा मर गए, भीष्म द्रोण सब मेरे दांतों में दबे रहे हैं, सबको मैंने खत्म कर दिया। भगवान ने अर्जुन को यह तक बोल दिया कि तुम 5 भाई और कुछ योद्धाओं के अलावा यहां से कोई जीवित वापस भी नहीं जा रहा। फिर भगवान अर्जुन को बोलते हैं
यू जस्ट बिकम, मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट बन के तो युद्ध कर और क्रेडिट ले जा कि तेरी वजह से युद्ध जीते। सब कुछ कर दिया, ये एक्ट ऑफ डिवोशन है। इसलिए ऐसा भजन आता है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये एक विजन है एक सेंटली पर्सन का, कि कर आप रहे हो, मैं सिर्फ क्रेडिट ले रहा हूं। और वो कब क्वालिफाई होता है व्यक्ति क्रेडिट लेने के लिए? जब वो भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, उनके बिहाफ पे काम करते हैं। हमें उतना ही बनना है। दैट इज सिंपल लाइफ ऑफ डिवोशन। भगवान गीता में कई जगह बोले हैं। हम इतने लोगों का गुणगान सारा दिन करते रहते हैं। मेरे दोस्त है, वो हर रोज, अब तो बंद कर दिया उसने जब से शादी हुई है उसकी, हर रोज प्रियंका चोपड़ा के बारे में पढ़ के सोता था। हर रोज। पहली बार उसने मुझे बताया, मैं तो हैरान हो गया। कहता मुझे सब कुछ पता है, जो सोशल मीडिया पे उसके बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, मुझे सब पता है। और वो इतना अपसेट था उसकी शादी के बाद। तो मैंने उससे पहली बार ही पूछा, व्हाट मेड यू सो कीन उसके बारे में जानने के लिए? कहता ऑफ कोर्स पहला तो नेचुरल था, सेंसुअल अट्रैक्शन थी, देन सुनना पढ़ना शुरू किया। बट ही मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो एग्जैक्टली भगवद गीता में आता है। He said, जितना मैं उसके बारे में सुनता गया और जितना मैं लाइक माइंडेड लोगों से उसके बारे में बात करता गया, उतनी मेरी अटैचमेंट बढ़ती गई। He said, it became an addiction for me. It took me time to get over this. अब हम सब हंसे ना इस बात को सुन के, बट उसके लिए सीरियस इशू था। और एग्जैक्टली भगवान गीता में ये बोल रहे हैं, किसी को अगर भगवान के प्रति आकर्षण चाहिए तो उसको सिर्फ भगवान के बारे में राइट सोर्स से सुनना है और भगवान के नामों का रेगुलर उच्चारण करना है। ऑटोमेटिकली इफेक्ट आएगा कि वी बिकम अटैच, भगवान से अटैच होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक मुक्त कर देगा और एक और ज्यादा बांध देता है। एक में ये शक्ति है प्यूरिफाई करने की और एक में शक्ति है और इम्प्योर बनाने की। अब हम ये चूज करना है कि हमने अपनी अटेंशन एटलीस्ट दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा देनी भी है कि नहीं देनी, सोल को नरिश करने के लिए। ये सिर्फ पिंजरा ही चमकाते रह जाना, मेरा वाला ऐसा है, तेरा वाला कैसा है। एक फ्रेंड है, मंदिर में आते हैं, वो मैंने उनसे पूछा, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, पर्पस क्या आपके लाइफ का? अब 6-7 महीने पहले, आई थिंक 1 साल पहले की बात है, 23 की बात है। मैंने बोला आपके जीवन का गोल क्या है? अब वो कुरियर का जॉब करते हैं, इट्स वेरी हार्ड वर्क, काफी बॉक्सेस उठाने पड़ते हैं ऑल दैट। बोले मेरे जीवन का गोल है कि मुझे 2 फ्लोर का घर बनाना है। तो मैं उनके घर में बैठा था और अच्छा खासा बड़ा घर था, इससे भी बड़ा था उस समय पे घर। मैं कहा ये पर्पस है तुम्हारी लाइफ का कि मेरे को 2 फ्लोर का घर बनाना है? कहते प्रभु जी बनाना ही बनाना है। बाद में पता चला उसके 2-3 कजन हैं जिसके पास 2 फ्लोर का घर है, इसलिए उसका पर्पस है। और एक दोस्त भी उसका बेस्ट फ्रेंड है मेलबर्न में, उसके पास भी 2 फ्लोर का घर है। तो उसका 2 फ्लोर का घर बना, तो मैं गया बाद में उसके पास उनके मिलने फैमिली से। दे वेरी नाइस डिवोटीज अभी तो, बट उसकी वाइफ बोली नीचे एक मास्टर बेडरूम है, बड़ा सा हॉल है, उन्होंने मंदिर बना रखा है वहाँ पे, और 1-2 ऐसे पैंट्री वगैरह बना रखी है, और मेन 4 बेडरूम ऊपर है। तो 3 लोग हैं घर में, 2 बच्चे हैं, एक बेटी है बड़ी और एक बेटा छोटा है, और हस्बैंड वाइफ। बोले हम चारों तो नीचे ही सो जाते हैं। तो वाइफ एकदम से बोली पता नहीं क्या शौक था इनको 2 फ्लोर का घर लेने का, सफाई तो मुझे करनी पड़ती है, हम तो नीचे का यूज करते हैं, करना क्या ऊपर 4 फ्लोर का। बाद में हस्बैंड मुझे आके बोलता है इसी ने पुश किया था। इसी ने बोला था उनके पास भी तो है, तुम क्यों नहीं ले सकते? दिस इज आवर रियलिटी। इसलिए लेट्स कट थ्रू इट, थिंक लिटिल डीपर। हम अपने बारे में नहीं, आगे की जनरेशन को भी तो कुछ वैल्यूज देके जानी है। उनको हम क्या देके जाएंगे? जीवन का गोल क्या? 2 फ्लोर का घर, और यही दोगे क्योंकि इसके ऊपर आपके पास है नहीं देने को। आप मैक्सिमम क्या दे दोगे? बेटा अच्छे बनना। उसको पता डेफिनेशन क्या होगी अच्छे बनने की? आपको क्या लगता है कोई जब व्यक्ति जिहाद पे जाता है और गोली से सबको मारता है, वो अपनी तरह से बेस्ट काम कर रहा होता है। उसकी डेफिनेशन है वो टू बी वेरी गुड। उसको पता है
या मेलबर्न की बात बता रहा हूँ, मेरे को बताया डिवोटी ने, उसके बच्चे ने एल्टोना में बताया, उसका बच्चा घर आके बोलता है, मम्मी माय फ्रेंड टोल्ड मी कि इफ आई किल 100 zombies गॉड विल बी प्लीज्ड विद मी। माँ बोली ये कैसा बच्चा है, 8-9 साल के बच्चे ये क्या बात कर रहा है। सो शी इंक्वायर्ड। अब एक सर्टन कम्युनिटी का बच्चा था, अब उसके लिए तो वैल्यू है ना। अभी 100 zombies को आपने अपने से तो रिप्लेस करना, सिर्फ एक हफ्ते में स्कूल से बाहर बच्चा निकाल लिया उन्होंने। बोले कहाँ जा रहा है ये, कैसे बोल सकता है बच्चा, ये स्कूल के अंदर 9 साल का बच्चा बोल रहा है मैं अगर 100 zombies को मारूंगा गॉड विल बी प्लीज्ड विद मी। अपनी तरफ से तो वैल्यू है ना उसके लिए, वो तो जी रहा है उसके हिसाब से। बट कौन डिसाइड करेगा अच्छा क्या बुरा क्या है? फॉर दैट वी नीड हेल्प, स्क्रिप्चरल हेल्प। शास्त्रों से क्या हेल्प चाहिए? सेंटली लोगों का हेल्प चाहिए हमें। विद दैट थॉट आई स्टॉप। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आई एम सॉरी आई वाज वेरी डायरेक्ट, मुझे पता है, बट करवा चौथ है आज। सुन लो। पूछो क्वेश्चन। आई थिंक यस शरद जी। प्रभु जी, आपने फिर अपने फ्रेंड से पूछा जिसने 2 फ्लोर का मकान बना लिया था, उसका लाइफ का पर्पस तो हो गया, अब उसके बाद? I briefly mentioned he is a very nice devotee now, और अभी तक मैं उसकी टांग खींचता हूँ उस बात को लेके। कई बार तो ऐसी ग्रुप में बोल देता हूँ वो खुद ही हंसता है। अब see the point is, वो बुरी डिजायर नहीं है कि आपका 2 घर का बड़ा घर चाहिए आपको या बड़ी गाड़ी चाहिए। गोल नहीं होना चाहिए यार वो लाइफ का। आपको सुख देने का साधन नहीं होना चाहिए वो। आपके प्लान की लिस्ट में हो सकता है, बट आपकी प्रायोरिटी में वो टॉप लिस्ट में नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स समथिंग इज वेरी रॉन्ग। आपको समझा नहीं है जीवन के बारे में कुछ भी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आपकी अगर कैपेसिटी है इवन लैम्बोर्गिनी चलाने की, चलाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। बट उधार लेके, कष्ट उठा के, ओवर टाइम करके, बच्चों को, हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को, सबको दाव पे लगा के क्यों करना है सारा काम? देन बी जस्ट सैटिस्फाइड। जो आपके कर्मों के द्वारा, आपकी मेहनत से आपको मिल रहा है उसमें खुश रहो और अपना इंटरनल लाइफ को फिक्स करो ना। और ये करंट मॉडर्न डे पे सोशल मीडिया ने जो नुकसान किया है इज जस्ट अनबिलीवेबल। मैं सच्ची बोल रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे से थोड़े से बड़े बाल रख के, यहाँ लाइन खिंचवा के बाल हेयर स्टाइल नहीं रखता। आमिर खान ने किया इसलिए लोगों ने वो हेयर स्टाइल किया। धोनी के बाल बड़े हुए तो सबके बड़े हुए। विराट में तो वेट करो विराट कोहली कब दाढ़ी काटे फिर फैशन चेंज होगा, देखते क्या आता है। हम सारे के सारे किसी और के प्रोपेगेंडा के द्वारा बनाए हुए एंटिटीज हैं। इसका मतलब ये है कि बिना प्रोपेगेंडा के तो कोई चल नहीं सकता। सब किसी ना किसी के बनाए हुए प्रोपेगेंडा के हिसाब से जीवन जी रहे हैं। सक्सेस उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसने सृष्टि बनाई है उसका प्रोपेगेंडा के हिसाब से जीवन जी लेगा। क्योंकि उनको ये पता है यहाँ पे सुखी कैसे रहना है और इसके बाद सुखी कैसे रहना है। बट जितने लोग यहाँ प्रोपेगेंडा बना रहे हैं क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेटिव है इन देयर नेचर। जितनी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, अभी तुम कार की बैटरी बेच रहे हो, आधे कपड़े में लड़की क्या करेगी उसके साथ? बट दे नो दिस इज हाउ यू सेल इट। शेविंग ब्लेड मैन का है, लड़की क्या चाहिए उसके लिए साथ में? दे नो दैट्स हाउ यू सेल इट। दिस इज हाउ प्रोपेगेंडा वर्क्स एंड वी बाय इट एंड वी लिव बाय इट, राइट? किसी ना किसी का प्रोपेगेंडा तो आपके जीवन को टच करने ही वाला है। अब आप डिसाइड करो किसका चाहिए। जिसने ये सृष्टि बनाई है ये जिसको आपका शोषण करना है, और ये इंटेलिजेंस आपको छोड़ दें। और कोई क्वेश्चन है? आपने हाथ उठाया था बीच में ना, मैंने। प्रभु जी, आपने वो बच्चे की बात बता रहे थे आपकी, वो नहीं बच्चे नहीं बड़े की, वो अपने पेरेंट्स को बोल रहा था कि आपकी हाइट छोटी इसलिए छोटा होना। बट इजंट दैट अ बॉडी थिंग? इट्स नॉट अ सोल थिंग, राइट? बॉडी इज तभी तो वो अपने हंसता है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा था अपने पेरेंट्स को? क्योंकि उसको लगा कि उसके जीवन के में जो सुख दुख उसके हिसाब से है, उसका कारण उसके माता पिता है, ना कि वो खुद। कि वो ऐसे कर्म होंगे कि वो ऐसे परिवार में जन्म लिए कि उसको एक सर्टेन टाइप का बॉडी मिला, वो कोई सोचता ही नहीं है।
क्योंकि हम सारे बहुत एक्सपर्ट है ब्लेम करने में। हम ढूंढते हैं दे किसको ब्लेम, कोई तो ले ले। फिर जब कोई नहीं मिलता तो भगवान को बोलते हैं तेरी वजह से ऐसा हुआ, तू है ही नहीं, तू निर्दयी है, तू ये तो वो। वी आर कॉन्स्टेंट ब्लेमर्स। एक ही चीज है जिसमें हम चैंपियन है, वो है ब्लेमिंग में, और हम सारे उसमें। जिस दिन व्यक्ति ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली 100% अपने सुख दुख की, उसकी लाइफ में मैजिक बिगिंस। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और कुछ? यस ब्रो। क्वेश्चन है, हाउ मच इज इनफ देन, यू नो? द क्वेश्चन इज, चाहिए तो सबको सिंपल खाना, जो हमने बात की थी, बेसिक नीड्स, शेल्टर, घर छोटा भी हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है, आराम से रह सकते हैं खुशी परिवार में। और सोल के लिए तो मेनली डिवोशन चाहिए, भक्ति चाहिए, दैट इज हाउ यू विल फील द हैप्पीनेस एंड द कनेक्ट विद द लॉर्ड। सो हाउ मच इज इनफ, यू नो? बिकॉज हमारा 90% या 80% प्लस तो हमारा टाइम उन्हीं चीजों के पीछे ही भागने में निकल जाता है। 100%। तो सारा टाइम तो हम वही कर रहे हैं। और सर्वे प्रिया जी जो आए थे, उनका बहुत पावरफुल था कि जो वो कह रहे थे, ऑल करियर्स लीड टू द स्टमक, which is so important to understand that strong statement, you know. The question is then, should we not follow our aspiration? Should we not progress in our career? या मतलब थोड़ा सा ये जो है, थोड़ा इस पे। हाँ, that's good question actually. युद्ध शुरू होने से पहले भगवद गीता में, महाभारत में, भगवान खुद अर्जुन के पास जाके उसको पता क्या बोलते हैं? तुम जाओ महादेव से शस्त्र लेके आओ, फिर तुम जाओ स्वर्ग में जाओ शस्त्र लेके आओ, फिर तुम जाओ देवी से शस्त्र लेके आओ। उसको इक्विप कर रहे हैं स्किल के ऊपर। और फिर जब भगवद गीता बोली तो बोले मैंने सबको मार दिया, तुम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनो। तो अर्जुन भी पूछेगा ना, इतना भगाया क्यों? फिर यहां से ये विद्या लो, वो सीखो, वो सीखो, वो सीखो, बट खुद सबको खत्म कर दिया। आपको बार्बरिक का नाम सुना किसी ने? हाँ, बार्बरिक था भीम का बेटा घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा बार्बरिक, जिससे खाटू श्याम बहुत फेमस हुए हैं अभी ना। खाटू श्याम पता ना? खाटू श्याम नॉर्थ में, राजस्थान में। तो बार्बरिक के पास एक शक्ति थी कि वो जो भी साइड हार रही है वो उस साइड पे जाके पूरी गेम पलट सकता है। ये वरदान था बार्बरिक को। सिर्फ 3 तीरों से, एक तीर से वो एम डिसाइड करेगा, दूसरे तीर से वो सब एम को फिक्स करेगा, और तीसरे से मार देगा। अब भगवान को पता था ये बार्बरिक अगर युद्ध में आया, भले भीम का पोता है, इसका माइंडसेट ही ऐसे कि जो हार रही होगी उसकी तरफ चला जाएगा। भगवान को पता था एक समय ऐसा आएगा कि कौरव हार रहे होंगे, तो ये जाके तो पांडवों को खत्म कर देगा। और क्योंकि इसको वरदान दिया, उस वरदान को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, भले ही भगवान एक क्षण में तोड़ सकते थे। तो भगवान बार्बरिक के पास गए, बार्बरिक को बोला कि तुम मृत्यु स्वीकार करो, यू डाई। भगवान बोल रहे हैं, बार्बरिक ने बोला ठीक है। इसलिए बार्बरिक को एक ब्लेसिंग भी मिला है, जिसकी वजह से खाटू श्याम में बार्बरिक का सर को वर्शिप किया जाता है एज श्याम। दैट्स द फोकलोर। वो ऐसी स्टोरी है, बट शास्त्रीय स्टोरी नहीं, बट ट्रेडिशनल ऐसे कल्चरली ऐसी स्टोरी है। तब भगवान बार्बरिक को बोलते हैं, तो बार्बरिक ने बड़ी रिक्वेस्ट करी भगवान को कि ठीक है, आप मेरा सिर्फ सर जीवित रखो, क्योंकि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने वरदान दिया कि ठीक है, तुम युद्ध देखो, और नीचे का धड़ खत्म कर दिया, क्योंकि सुदर्शन से भगवान ने काटा सर। तो अब बार्बरिक ने पूरा युद्ध देखा। एक संजय ने देखा, धृतराष्ट्र को रिले किया, और बार्बरिक ने पूरा युद्ध देखा। तो संजय भगवद गीता के एंड में एक श्लोक बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण तदा पार्थ धनुर्धरा तथा श्रेय विजय ध्रुव नीति मतिर्मम। जहाँ पे भगवान कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है, वहां पे विजय होगी, नीति होगी, मोरालिटी होगी, सब कुछ होगा। ये मेरा मत ही है, संजय का ओपिनियन था। युद्ध के बाद बार्बरिक के पास गए और बार्बरिक को पूछते हैं बेस्ट वॉरियर कौन था इस युद्ध में। बार्बरिक पता क्या बोलते हैं, कौन था वॉरियर? कोई तो लड़ ही नहीं रहा था। बोले 17 दिन युद्ध हुआ, इतना मारा, अर्जुन ने ये किया, कर्ण ने वो किया, दुर्योधन ने, भीम ने इतने मारा, 100 के 100 भाई मार दिए भीम ने। बोले कोई भी नहीं लड़ रहा था, ये तो कृष्ण ही सब कुछ कर रहे थे, मेरे को तो और कोई दिखाई नहीं, मेरे को तो और कोई दिखाई नहीं कुछ करता हुआ, ये कृष्ण ही सब कुछ कर रहे थे, बाकी सारे तो इंस्ट्रूमेंट की तरह फ्लैप कर रहे थे। फिर भी भगवान ने अर्जुन को क्या बोला,
तुम राजा बनो। प्रिंस था ना वो, किसके राजा बनो? पृथ्वी के। क्यों बोला पांडवों की कि तुम राजा बनो, तुम पृथ्वी का राज्य संभालो? उनको क्यों नहीं बोला कि जाओ जंगल में भक्ति करो, हट बनाओ, खाना मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पेट मैं तुम्हारा संभाल लूंगा, भक्ति करो? क्यों नहीं बोला? बिकॉज भगवान अपनी शिक्षा द्वारा ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति राइट कॉन्शियसनेस में है और उसके पास अगर प्रॉपर रिसोर्सेज हैं तो वो मिसयूज नहीं करता, वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करता है। प्रॉब्लम है हमारे कॉन्शियसनेस ठीक ना होने की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से हम उस रिसोर्स को मिसयूज करते हैं, और वो मिसयूज रिसोर्स हमारे खुद के पतन का, हमारे खुद के डिस्ट्रेस के कारण बनता है। सो हाउ मच इज इनफ? Whatever you have and you don't misuse is enough. Now how you judge that? आपके जीवन में अगर आप 8-9 घंटा, एक श्लोक आता है ईशोपनिषद में, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगतम जगत तेना तक्तेन भुंजिता मा गृधा कृष्ण सविद्धनम। आप 8-9 घंटे में जितना मेहनत करके कमा सकते हो वो आपका कोटा है, आपका निर्धारित कोटा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको अपने मन, शरीर, परिवार और अध्यात्म के लिए समय चाहिए ताकि आप बैलेंस कर सको। क्योंकि जीवन का डीप अगर गोल जाके देखें तो पैसा कमाना नहीं है, रूट गोल जीवन का गोल है सुखी होना। कोई व्यक्ति, मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में रहा हूं, जब 2009 में बहुत ज्यादा न्यूज फैलने लगी कि इंडिया में कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियन बच्चों की पिटाई हो रही है, अगर वो 2009 में आता उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि बहुत सारे इंडियंस को पीटा जा रहा है। सडनली पता है कितना बड़ा ड्रॉप आया था माइग्रेंट्स का? 60% से ऊपर, 60% से ज्यादा बच्चों ने एप्लीकेशन कम कर दी थी। क्यों? क्योंकि जिस सुख के लिए वो आ रहे थे अब तो पिटाई होगी। ये न्यूज थोड़ी ना गई थी कि क्राउन ने $30 से $12 कर दिया अपना रेट। न्यूज क्या थी? पिटाई हो सकती है। इंडिया में इतना बड़ा दिखाया, हमारे को मम्मी इंडिया से बताती थी, अब किसी को और को मारा है हमें पता ही नहीं होता था यहाँ पे। बट द आइडिया वाज व्हाट? जब आपके सुख में बाधा आई तो पैसा वैल्यू नहीं किया। इसका मतलब क्या है? यू वर्क फॉर हैप्पीनेस नॉट फॉर मनी। यू हमारे को ट्रेन किया ऐसा इस संसार ने कि पैसा सुख देता है, बट आप सुख के लिए काम करते हो टू अ डिग्री दैट इवन अगर सुबह में आप पेट क्लियर ना करो तो आपको दुख होता है, और वो करने के बाद सुख होता है, वो भी आप सुख के लिए काम करते हैं। मैं एक बार ऐसे क्लास दे रहा था तो एक लड़की एकदम हाथ उठा के बोलती है, आई डोंट अग्री विद यू। मैं बोला क्यों? बोली मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं आता, मुझे आना नहीं था ऑस्ट्रेलिया, मेरे को फोर्सफुली भेजा गया। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं हर चीज में सुख के लिए करती हूँ? मैंने बोला किसने बोला था आपको? बोले मेरे पेरेंट्स इंसिस्टेड मी, मैं नहीं आना चाहती थी घर छोड़ के, मुझे उन्होंने फोर्स किया कि तू जा ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने बोला फिर दे वर हैप्पी जब आप यहाँ पे आ गए थे? बोले दे वर वेरी हैप्पी। सो आई सेड डू यू फील हैप्पी व्हेन योर पेरेंट्स आर हैप्पी? बोले आई इसलिए कि उनको खुशी मिले। मैं बोला वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप काम ही सिर्फ सुख के लिए करते हो, सिर्फ डेफिनेशन चेंज होती है। इसके सुख, या मुझे इस तरह सुख चाहिए या उस तरह सुख चाहिए। कभी ऐसा हुआ है? सच्ची बताना। हम कितना ये फिलोसॉफिकली स्टेटमेंट मारते हैं ना, अगर जीवन में दुख नहीं होता तो सुख को एंजॉय कैसे करते? सब बोलते हैं ना ऐसा। कभी ऐसा हुआ आपकी लाइफ में एक बारी भी कि आपको लगा हो कि यार एक हफ्ते से मैं सुखी हूँ, अब दीवार पे जाके सर मार लूं, थोड़ा दुखी हो लूं ताकि अगला हफ्ता में और सुख एंजॉय कर सकूं? कभी ऐसा हुआ है? आप 100% एवरी सिंगल एक्शन ऑफ योर्स इज एमिंग एट वन थिंग, हाउ टू बी हैप्पी। हर समय ट्रू और नॉट? हर समय, क्योंकि ये सोल का नेचर है, इस जगत का नेचर नहीं है, ये आत्मा का नेचर है। कांस्टेंट प्लेजर हंटर्स वी आर, हर समय सुख खोज रहे हैं, क्योंकि सोल का एक इनेट कोर नेचर है ये। अगर इस जगत का नेचर ये होता तो आप एक्चुअली में कभी कभी दुख चाहते, कभी कभी सुख चाहते, बट क्योंकि आप आत्मा हो जो इस जगत को बिलोंग नहीं करती, इसलिए आप इस जगत के नेचर से कंपैटिबिलिटी में हो नहीं। आपकी डिजायर इस जगह से मैच नहीं करती है। हम सिर्फ फिलोसोफाइज करके खुद को सांत्वना दे देते हैं जब दुख आता है, चल कोई नहीं, सुख आएगा तो अच्छा ही लगेगा, बट आप चाहते कभी नहीं हो ऐसा। इसलिए हाउ मच इज इनफ? हाउ डू यू डिफाइन इट? वॉट एवर गिव्स यू इनर हैप्पीनेस,
एंड व्हाटएवर कीप्स योर फैमिली पीसफुल, जितना फाइनेंसेस आपके परिवार को पीसफुल रखता है अपनी जरूरतें पूरी करके, उतना आपकी नीड है। और वो सेटिस्फाई व्यक्ति को अपने हिसाब से फुल टाइम 40-45 घंटे के जॉब में हो जाना चाहिए। उसी 40 घंटे अगर काम करता है कोई रिक्शा चलाने वाला, तो वो 200-300 रुपये दिन का कमाता है अगर वो 8 घंटा रिक्शा चलाता है। वही सुपरमार्केट में काम करता है तो वो एक दिन का $200 कमाता है। वही कोई आईटी वाला काम करता है तो 500-600 कमाता है। वही कोई बिजनेसमैन होता है तो $6,000-7,000 कमा सकता है। प्रिंसिपल इसकी उसमें सेटिस्फाई हो जाना। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्किल अपग्रेड नहीं करो, बट अपग्रेड करने के बाद भी इससे ज्यादा खुद को मत खटना। क्यों? क्योंकि ये करते ही आपके बाकी इम्बैलेंस शुरू हो जाएंगे, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, भगवान से जुड़े सारी चीजों में। That's how you define how much is enough. इधर हो गया? Yes, बोलो। प्रभु जी, जो कर्मयोग में जो मैं जो अंडरस्टैंड किया हूँ, इफ यू थिंक लाइक कि आप जो भी कर रहे हो वो भगवान के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो फिर ज्यादा काम करना, अगर ज्यादा काम करें तो अगर अपना माइंडसेट आपने बिठा लिया है कि जैसे आप पैसे कमा रहे हो तो अपनी फैमिली के लिए या फिर जो भगवान ने दिया है आपको उनके लिए कर रहे हो, तो फिर ज्यादा पैसा कमाना टू स्पीड अप दैट, isn't that another thought process logical? It's only a good thought, but it will never happen. क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी इमरजेंसी आ जाए, फैमिली में आ गई, या फाइनेंशियली रियली स्ट्रेस्ड आउट हो गए, तो आप अपने आप को पुश कर लोगे। बट आप अगर अपने आप को एक ही डायरेक्शन में फोकस करोगे, क्योंकि ये गीता का ये श्लोक तो हम सुन लेते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अगली लाइन नहीं सुनते, मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा तो संगस्त कर्मणि। यू हैव ऑल द राइट टू डू योर ड्यूटीज। आपको अपने कर्म करने का अधिकार है, फल आपके हाथ में नहीं है। हम ऐसी बात क्यों करते हैं पता है? क्योंकि हम फल को कंट्रोल करना चाहते हैं और कर्म सेकेंडरी हो जाता है। एक स्टूडेंट को स्ट्रेस क्या देता है? 100% लाने। You just focus on studying well, right? माँ कर्म फल हेतुर्भुर् माँ तो संगोस्त कर्मणि। बट तुम कभी अकर्मणि, तुम कभी नॉन एक्टिव नहीं रह सकते। तो कर्म करेगा व्यक्ति, बट जिस प्रिंसिपल पे आप बात कर रहे हो कि अगर यही मेरा पैसा कमाना ही मेरा भगवान को ऑफरिंग है। अभी एक सिंपल मैं बताऊं, किसी की अरेंज मैरिज होती है ना, तो उस अरेंज मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है हस्बैंड वाइफ शुड स्पेंड टाइम टू नो ईच अदर। आपस में समय बिताओ एक दूसरे को जानने के लिए, नहीं तो एक दूसरे को जाना नहीं और एक्सपेक्टेशंस थोपने लग गए तो होगा क्या? प्रॉब्लम। एक बार एक लड़के को एक लड़की पसंद आई, मैं बहुत पहले एग्जांपल दे चुका हूँ, बट इट मेक्स सो मच सेंस। उसने सोचा अब मैं इस लड़की को फ्रेंड्स बनाना चाहता हूँ तो कुछ तो प्रपोजल भेजता हूँ। उसने सबसे महंगे रोजेस का एक बुके बनवाया अपने दोस्त को बोल के, अपने दोस्त को बोला लेके जा, छोटा सा कार्ड डाल दिया, जस्ट वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू। उसको पता था लड़का भी ठीक ठाक था, पैसे वाला था, इतना बड़ा बुके कोई भेज ही नहीं सकता, तो बोला फ्रेंडशिप इतना तो मान जाएगी। वो जैसी रोज उसके पास लेके गया, उसने वो बुके लिया, पटक के नीचे मारा और चली गई वहां से। और कुछ तो दोस्त को गाली वाली दे, जो भी बोल रहे थे, ये मन में सोच रहे बड़ी हार्ड हार्टेड है यार, वापस कर देती। ये कैसा कि फेंक दिया उठा के, ये इतना ज्यादा। तो दोस्त आके उसको बोला तू मूर्ख है, तू पागल है, तेरे में अकल ही नहीं है। बोला यार पहले बुके गिरा, उससे दिल टूटा है, तू भी गालियां दे रहा है, चक्कर क्या? कहता तूने इतनी मेहनत नहीं करी ये जानने के लिए, उसको रोज से एलर्जी थी, तेरा एक फूल में काम हो जाता, तूने इतने पैसे खर्च दिए बिना जाने कि उसको प्रॉब्लम तो नहीं होगी इससे। एग्जैक्टली हम ये रिश्तों में करते हैं और यही प्रिंसिपल हम भगवान पे भी थोपते हैं। वी डोंट इन्वेस्ट टाइम टू नो द बिलवर्ड, और फिर अपने हिसाब से प्रिंसिपल बनाते हैं कि मैं इतने घंटे काम करके उनको सेटिस्फाई कर दूंगा। अरे उनसे तो सुन लो उनको क्या चाहिए। He wants you to have a balanced life, जहां पे आप कर्म तो कर रहे हो, बट अगर सीखा ही नहीं कि उसको योग में कन्वर्ट कैसे करना है, और वो योग में कन्वर्ट करने के लिए आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, वो योग में उस कर्म को कन्वर्ट करने के लिए आपको भगवान के बारे में सुनना पढ़ना पड़ेगा, तभी तो जानोगे ना उस व्यक्ति के बारे में। नहीं तो जान कैसे पाओगे भगवान के बारे में? जिससे रिलेशनशिप बनाना है उसके बारे में अगर जाने ही नहीं, तो आप अपने ही खुद के मन से कोशिश करोगे सामने वाले व्यक्ति को इंप्रेस करने का। हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है डार्लिंग आई एम वेरी थर्स्टी, पानी दे दो। बोले आई लव यू, बोले पानी दे दो। आई लव यू पानी क्यों ला रहे हो हमारे बीच में?
बोले आई लव यू, बोले पानी मतलब, बोले मुझे बहुत प्यास लग रही है, चुपचाप जाके पानी लेके आ। तो बोलती आई रियली लव हिम, जाती है एकदम गर्म दूध उबालती है, केसर डालती है, बादाम डालती है, अच्छे से उबाल के लाती है, उठा के फेंक देता गिलास को। बोला मैंने पानी मांगा तो मुझे प्यास लग रही है। दिस इज व्हाट वी डू इन वेदर इन रिलेशनशिप, और भगवान के साथ तो स्पेशली। मुझे ऐसे ही भक्ति करनी है। अब जिसकी करनी है उनसे तो सुन लो कैसे करनी है, नहीं मुझे तो ऐसे ही करनी है, मैं ऐसे ही चाहता हूं। अभी लिटरली द डेफिनेशन ऑफ लव मीन्स यू सर्व द बिलवड जैसे उनकी इच्छा है। और भक्ति एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल पे चलती है। भगवान से सुन तो लें, अब वो सुनने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अब आप कर्म योग वाला फिलोसफी अगर अपना लिया तो आपको कभी समझेगा ही नहीं कि उनको चाहिए क्या, और उनको सुनने लगोगे तो आपको ये भी समझेगा कि व्हाट ही एग्जैक्टली वांट्स। भगवद गीता में एक श्लोक ये भी है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्त दृढ़वता। 24 घंटे मेरा भक्त मेरा नाम जप करता है, वो श्लोक भी बोलो। आपको कर्मयोग वाला कोट किया ना आपने, वो भी तो श्लोक है। तो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड होलिस्टिकली कि एग्जैक्टली करना कैसे है मुझे प्रैक्टिकली है। इज इट ओके? और कोई क्वेश्चन है किसी का बिफोर वी? हाँ जी आपके ऊपर, सॉरी मेरे ऊपर। अच्छा नहीं, आप स्टूडेंट बन के आए थे। हाँ। तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ यू कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया नाउ? हैव यू अचीव्ड दैट, और आप सोच रहे हो क्या वापस आना? और यहाँ पे लाइक व्हाट मेड यू चेंज इन ऑल दिस थिंग्स? अभी मेरे को 17 इयर्स से ऊपर हो गया है, ऑलमोस्ट 18 इयर्स होने वाले हैं। तो आई डिड नॉट अचीव व्हाई आई केम हियर फॉर, आई एम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो हमारे फैमिली में कोई जॉब नहीं करता। तो मैं उसी पर्पज से आया था कि मुझे बिजनेस करना है। बट अभी 11 साल से तो मैं मंदिर में फुल टाइम सेवा कर रहा हूँ। तो चेंज हो गया पर्पस। बट नाउ व्हाट पर्पस आई हैव, आई एम मूविंग टुवर्ड्स दैट। बट जिसके लिए मैं ऑस्ट्रेलिया आया था वो तो कहाँ का कहाँ रह गया पता ही नहीं है। तो आई केम एज ए स्टूडेंट सोच के कि बस जाके जो कोर्स करेंगे, PR लेंगे, पापा का बिजनेस वहाँ पे जैसा है मुझे अपना यहाँ करना है। ऑल दिस प्लानिंग्स वर देयर, बट कृष्णा का प्लानिंग कुछ और था। आई एम वेरी हैप्पी भगवान का ऐसा प्लानिंग था। पढ़ाई के साथ साथ आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड भगवद गीता, स्टेइंग विद लाइक माइंडेड पीपल, आई वाज डूइंग माय डेली प्रैक्टिस जो भी था। तो 5 साल मैंने काम भी किया ट्रैवल इंडस्ट्री में। बट देन समटाइम्स यू नो तुम्हारा कॉलिंग इतना लाउड होता है कि तुम अभी उसको निगलेक्ट नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि 1 साल ट्राई करता हूँ, कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ भगवान की सेवा करनी, 1 साल करूँगा बस, ये सोच के गया था। फिर 1 का 2 हुआ, 2 का 5 हुआ, अभी 11 हो गया। विद ऑल योर ब्लेसिंग्स आई वांट टू कंटिन्यू। सो लगे रहे इसी में। नहीं, इसलिए पूछा कि हमारा फैमिली सब इंडिया में, हम लोग आए थे ऐसे टेम्पररी, लाइक 6 मंथ्स 1 साल के आए थे। वो अभी 11-12 साल हो गया, पता भी नहीं चला। अब अभी हम वापस भी नहीं जा सकते, अभी नहीं रह सकते, ऐसा सिचुएशन हो गया। मतलब आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे लोग इसी डायलेमा में है कि अभी बच्चे यहाँ सेटल हो गए और पेरेंट्स वहाँ ओल्ड हो रहे हैं, तो अभी क्या करें। इट्स अ वेरी हार्ड क्वेश्चन टू आंसर, क्योंकि सबका फैमिली सिचुएशन अलग है। बट एक ही प्रिंसिपल मैं इसमें बोल सकता हूँ आपको, and that principle is unless you have a higher purpose which is higher than आपके पेरेंट्स की सेवा से, अगर आपने वो हायर पर्पस के कारण उसको सेकेंडरी नहीं रखा, बट एक मनी के पर्पस के लिए उसको सेकेंडरी रखा, तो यू विल गेट हेवी रिएक्शंस। समझ आया? अगर आपके जीवन का एक पर्पस है, बहुत हायर पर्पस है, जो उनकी सेवा से भी ऊपर हो, जो केवल और केवल भगवान के कनेक्शन में हो सकता है, और फिर आपने कोशिश करी कि इसको सुपीरियर पर्पस को लाइव रख के अब मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं उनकी सेवा में, वो करूं, देन यू विल बी ओके। बट अगर आपने मटेरियलिस्टिक पर्पस को रख के अपना धर्म नहीं निभाया माता पिता के प्रति, यू विल गेट रिएक्शंस। धर्म एव हतः हन्तु धर्मो रक्षति रक्षितः। जिसने धर्म को त्यागा, धर्म ने उसको त्याग दिया। जिसने धर्म की रक्षा करी है, धर्म ने उसकी रक्षा करी है। और हाईएस्ट धर्म क्या है? सवै पुंसा परो धर्म, ये तो और भक्ति रघोक्षज।
हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म इज सोल का भगवान से पुनः रिकनेक्शन, और उस रिलेशनशिप में अपने इस जगत के सारे धर्मों को अच्छे से निभाना, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है धर्म की। बट हम इतने ज़्यादा मूव्ड हैं थ्रू द पैटर्न्स जो सोसाइटी ने क्रिएट करी हैं ऑफ सक्सेस, सो कॉल्ड सक्सेस, कि हम अपने बेसिक धर्म को भी साइड कर देते हैं। इधर ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, we'll move to our next part, which is lamp offering. या क्या नाम है? दामोदर।